Welcome back to Imposters. I'm saying this after a long time. Okay, so the segment that we are going to do now is what would you rather? Okay. Okay, so we have 3 questions here. The first question is what would you rather? See your life until now on a TV with your parents or fall in love with your cousin sister? I would rather see my life on a television with my parents. Why? Because it is a journey. Yeah. जैसे स्कूल में एकदम पढ़ाकू बच्चा, फिर उसके बाद It includes everything, हाँ? It includes everything. तो से बाथरूम में आके मुठ मार रहा है, सब included है. हाँ, I'm okay with that because every guy or every girl does that. वो वैसे वो phase आता है, but I'm okay with them watching my entire life because ऐसा नहीं है कि I have done a lot of shit in my life which I need to be embarrassed of or afraid of. ये ऐसे मैं drugs कर रहा हूँ बैठ के कोकेन घुसा रहा हूँ अपने अंदर और मैं माँ बाप देख रहे हो क्या कर रहा है, तो ऐसा कुछ I haven't done anything crazy in life. So whatever I've done is like normal only, like every kid has done that in terms of like being, और plus मेरा personality growth अच्छा हुआ है in terms of being absolutely shit to now ऐसा थोड़ा decent. तो मेरे हिसाब से वो मजा भी आएगा देखने में कि हार्ट ब्रेक भी हुआ है, फिर से ऐसे ग्रो अप भी हुआ है. नाउ आई एम स्टार्टिंग अ पॉडकास्ट, को देखने में मजा आएगा. लास्ट ईयर मैं शो को कॉल कर रहा था, पॉडकास्ट चालू करते हैं, चिको में कॉल करेंगे, पॉडकास्ट चालू करते हैं, तो इट विल बी अ नाइस जर्नी टू वॉच. नहीं मतलब आई थिंक कि आई एग्री विद यू हियर, राइट, फॉर 2 reasons. Number 1 कि I'm not a Pakistani, so I can't do the latter. I can't fall in love with my cousin sister, and even if I start to have feelings, I'll be like, nah, please, I'll just vomit. बोला नहीं ये नहीं हो रहा, हम खानदानी लोग हैं, हम नहीं करते हुए. वो उसका मीम है ना, वो कौन सा मूवी है चैडविक बोसमैन का, we don't do that here. We don't do that here. In India, we don't do that. That's only for the Pakistanis back there. But yeah, so again, like you, even I haven't done a lot of right, like drugs or alcohol or cigarettes. Like we don't do that. Plus, so obviously there are some embarrassing moments, but there's a lot of growth involved, and you know, a lot of maturity also at a very early age. So I think that. I don't know if my mom would relate to that, but I think she won't be unhappy, right? That I'm sure of. Plus, apart from that, I feel that like there are a lot of cringe moments as well. Like at 24 approximately, right? When you look at your 18-year-old self doing stuff, you're like, अरे भाई बंद कर दे, हाथ जोड़ता हूँ. But yeah, so मतलब कि वो मेरे को, तो वो उनको cringe नहीं होगा, वो मेरे को देखने में embarrassment और cringe होगा, मैं क्या कर रहा था. But I don't think that they will be upset or embarrassed कि यार तू ये सब क्या कर रहा था, because for them कि like उन्होंने I think वो in person भी देखा होगा, वो भी TV में देख के बहुत कुछ शायद से change नहीं होता है. It's all those things जो उन्होंने लाइव नहीं देखा है, और स्पेशली स्टफ स्पेशली मतलब हम तो अपना लाइव पॉडकास्ट में डिस्कस करते ही है, सो विल नॉट बी समथिंग न्यू फॉर आवर पेरेंट्स कि वो ये सब क्या बोल रहे हैं. हमने ऑलरेडी काफी चीजें डिस्कस करी, डिस्कस करते हैं. योर पेरेंट्स वॉच इट, माय मॉम इज लाइक थोड़ा देखती है, अच्छा माय डॉग आल्सो वॉचेस इट, उसको भी पता है कि अच्छा लगता है देखेंगे. पीच कटा रहा और लीड पे उसका लाइक आता है, कमेंट भी आता है जो निखिल हाइड कर देता है फिर. ये तो द थिंग इज I saw this reel on Instagram. I don't know if I'll be able to find it and you know give that reference like if right now or in the main episode or not. But उसमें एक ऐसा अच्छा खासा ठीक है मस्त रील बना है, रोमांटिक वाइब्स एक्सेट्रा की, और उसमें ऐसा लिखा है कैप्शन, मी एंड माई दैट कजन at a family function right before like you know we are about to make out or something like that, एकदम ऐसा करके. एंड उसमें कमेंट सेक्शन में लोग ऐसा लिख रहे हैं कि रील खोलती ही मैं पाकिस्तान पहुंच जाता हूँ, ऐसा रील स्ट्रेट फ्रॉम पाकिस्तान ऐसा मार रहे हैं. बट सब लोग और आधे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई उल्टी आ जाएगी, ये सब क्या रील बना रहे हो तुम लोग, like all that shit. Okay, so the next question is what would you rather find out that you're gay or find out that your girlfriend is a lesbian? I would rather find out that my girlfriend is a lesbian than me coming out as gay, because I think it's in the open, right? ये बोल रहा था, if I come out, people won't be surprised. हाँ ये तो पता ही नहीं, कब wait करेंगे कब. But हाँ, for my girlfriend to be lesbian, of course it'll be shocking, but it'll be interesting कि she's having whatever she's doing that with another girl. It's a good imagination कि हाँ ठीक है, I can think about all that. But me coming out as a gay person, people will be like, bro,
तेरे को ये 2-3 साल पहले रियलाइज करना चाहिए था, 10 साल पहले रियलाइज करना चाहिए. Even though I'm not gay, I'm just fucking making fun of myself because I'm used to getting such things. People saying such things about me. ये स्कूल से चालू है और अभी तक चालू है, अभी भी बोलते रहते हैं ये जैसे. मैं तो मस्ती में बोलता हूँ, लोग सीरियसली बोलते हैं. Exactly, but हाँ, I'm not gay, but हाँ, मेरे को girlfriend turning out to be lesbian will be very hurtful, but will be nice also. So in my case, see, I think like this is a very sensitive issue. So I think I would like to go with my own happiness. So life which is to find out that she's a lesbian. no, I'll be happy I like guys. I'll come out. I think in the current scenario, I'm not homophobic, right? But but in this case, I think I would be more mentally happy when I find out that my girlfriend is a lesbian. So because so many avenues, right? So many multiple avenues, and it's not every day that you, I think, find out that you're a Ross Geller in someone's life. Exactly. And then you find the Rachel. The first example that gave him. Absolutely. Okay, so the last question in this segment is, what would you rather? Know your date of death or know the way you die? Interesting one. I feel I'll know the date of dying rather than knowing the way I die, because I don't know, it's a different perspective as to if I know from 10 years from now I'm going to die, at least I'll make everything else about it, like okay, I want to do this, I want to do this. I know I have only 10 years, so whatever I'm scared of doing right now, I'll just do it. मेरे को पता है 10 साल में everything is not going to matter, right? Everything will be irrelevant for me, so might as well do everything that I want. Even if I'm scared, I know it won't matter. Even if I'm afraid of starting anything, it won't matter. I'll enjoy the next 10 years of my life completely, rather than knowing the way I die. For example, if it's fucking flight crash, or if it's, I don't know, being shot, जैसे बाबा सिद्दीकी जैसा, तो ऐसे मेरे को it'll be terrifying कि वो मेरे को पता नहीं कब होगा, ये कभी भी हो सकता है, so I'll always be scared कि वो now I'm stepping out, next flight में मेरे साथ हो जाएगा, or I'm stepping out, something is going to happen. So I would rather know when to die rather than how to die. I'd say very, very interesting, but for me the answer is opposite. I'd rather know the way I die. Not my life date of death, because for me, example, if I get to know I'm dying on let's say 1st November 2032, मैं अगर एक्चुअली वो डेट पे मर गया ना crazy हो जाएगा. तो ठीक है, so I know from 8 years from now I'm going to die, there's no way out. So like each passing day, you know, I just can't see myself. So life, there's this thing like what you were saying, कि you know, I can go out and I can live my life. Like for me, I just, you know, looking at my friends and my family and some beautiful things in this world, and I have only 8 years, अगले साल only 7 years, only ऐसा 6 years, and I think that almost in like almost every third day or fourth day there will be a point in my life where I'll be just sulking and I'll be like कि बस अभी सब खत्म हो जाएगा, राइट? एंड आई नो कि ये दिन पे खत्म हो रहा है ना, एंड अ वीक बिफोर दैट, अ मंथ बिफोर दैट, है ना, इट्स लाइक यू अज्यूम दैट टिकिंग बॉम्ब है, या जस्ट अज्यूम कि यू नो like go life फिर God forbid नहीं हो, but example one person who is close to you, like he or she has cancer, and you know कि it's in the last stage, and वो like डॉक्टर बोल देता है कि अभी मैक्स 1 साल है, तो that 1 year for the person also, अभी उसको पता है उसका डेट क्या है, and for you as his or her close relative or like whatever, and you know कि you can lose that person anytime, and like he or she knows कि you know कि I can pass away anytime in the coming year. Correct. Right, and that 1 year is, I think, fucked for the entire family and all the close ones. Correct. As compared to know the way you die, right? See, like it can be a plane crash, right? So I can be like कि मैं मेरा एकदम अवॉइड ही कर देता हूँ प्लेन क्रैश, मतलब कि मैं फ्लाइट से जाना ही बंद कर सकता हूँ, मैं ट्रेन ले लूंगा, मैं चाहे दिल्ली जा रहा हूँ 2 दिन ट्रेन में मरूंगा बट चलेगा, मैं जिंदा वापस आऊंगा, राइट? एंड सी एग्जाम्पल, इफ इट इज समथिंग विथ नेचुरल कॉजेस, तो नेचुरल कॉजेस तो बेस्ट है ना, आधे से ज्यादा लोग कोई हार्ट अटैक से मर रहे हैं, मतलब आई डोंट नो लाइक यू नो बाय स्टैट्स क्या है, लाइक अपना फिर डेथ परसेंटेज by some disease, but I would say कि example, if I'm dying from heart attack or something, so I know कि ठीक है, ये तो बहुत लोग के साथ होता है ना, और ये तो गिवन ही था, है ना, क्योंकि आज भी हमको नहीं मालूम कि हम कितना टाइम जिंदा है ना, लाइफ में 2 दिन बाद कुछ हो जाए,
20 साल बाद कुछ हो जाए, भाई 50 साल बाद भी कुछ ना हो, है ना, बट वो तो ऐसा है कि भाई कभी भी ऐसा बस ऐसा स्ट्रोक आया गया आदमी। I get it. This is the most logical thing to say कि हाँ knowing how to die, but it's like मेरे हिसाब से कि मतलब अगर समझ तो बोला मैं plane avoid करूँ, but there will be this one time where you have to take it. बट उसमें भी गारंटी नहीं है ना, Correct, हो सकता है वो तेरे आगे वाले लाइफ में देखो वो एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग टू सम प्लेस इन इंडिया, सो एवरी फ्लाइट इज लाइक 2 to 3 hours मैक्स, 3 hours मैक्स, तो यू विल बी लाइक कि चल वो 3 घंटे तेरी गांड फटी रहेगी, मतलब भाई कुछ भी हो सकता है, एक टर्बुलेंस आ गया, यू लाइक आज तो गया, आज तो गया, बट एग्जांपल वो 3 घंटे निकल गए, फिर उसके बाद चलो ये तो अभी निकला, अब अगला प्लेन राइड कब आएगा कब मालूम, हो सकता है मैं 2 साल बाद बैठूं, मैं अगले दिन बैठे फिर से, मेरे को फिर से भी तो आना है घर। बट फिर वही है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुझे डेट पता चल गया ना, द ओनली रीजन फॉर मी टू चूज दिस, मैं कंफर्ट जोन से एकदम निकल जाऊंगा कि फक इट, 10 साल ही है जिंदगी पे, सब कुछ करना है अभी, किसी से भी डरना नहीं है अभी, लाइक फक इट, nothing matters bro, literally nothing। मेरे को लग रहा है तेरी मौत का कारण भी यही होगा, क्योंकि तेरे को पता नहीं तेरा वे ऑफ टाइम, तू बोल रहा है फक इट, मैं केयरलेस, तू जाके राड़े कर रहा है, कोई बंदूक से आके इधर को उड़ा दिया, और कर राड़े, फिर तो समझा ये पूरा सर्कल था, ये तेरे को फंसाया गया है, तू समझ रहा है, मैनिफेस्ट किया, तूने मैनिफेस्ट किया खुद का डेथ, 10 साल बाद कि मैं 10 साल मरना है, आज मैं फियरलेस हूंगा, फियरलेस होके चुतियाप कर लिया, प्लेन से कूद गया, मर गया। तो इसका अपसाइड ये है कि ऐसे लाइफ में रिग्रेट नहीं रहेगा कि भाई ऐसे 10 साल में जो भी करना था कर लिया, रिग्रेट नहीं लेगा। फॉर मी इट इज लाइक कि अभी एग्जांपल मतलब कि यू नो कि आई नो कि people have this like these things, you know, I want to go to XYZ place, I want to do bungee jumping, I want to do ऐसा है ना, do this or that, मैं लाइक अगर मेरे केस में अगर मैं वो सब किए बगैर भी मर गया ना, मेरे को आई डोंट थिंक इफ माई सोल डजंट फाइंड पीस लाइफ, इट विल बी बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो मतलब कि आई वुड लाइक टू डू दैट, जब मौका मिले करूंगा, बट नहीं भी किया तो भी मतलब ठीक है, अब मैं अभी भी नहीं किया, 24 साल का भी होऊंगा इन 2.5 months, नहीं किया ठीक है, चल रहा है लाइफ, तो फिर लकीली इन माय केस ऐसा नहीं है। See, even I am very scared of adventures. It's not just about adventures, it's about other things as well. कि for example, मेरे को अभी कुछ नया चालू करना है, doing any kind of crazy stuff, समझ कर लो बिजनेस चालू करना है, कब से टाल रहा हूँ, और मेरे को पता है मैं 10 साल बाद मर ही जाऊँ, क्या कितना टालू हो, तो अभी कर ही लेते हैं ना। तूने इसके लिए स्टार्ट नहीं किया तो पता डेट पता है, टिकिंग बॉम्ब, बट गुड फूड फॉर थॉट, आई वुड से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव। So let us know in the comment section what do you think, कि तुम क्या जानना चाहोगे। और ऐसे मेरा टाइम जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कम मरना, उसके बाद तो कोई करेगा ही नहीं, मरना बेंचन मेरे को क्या। So guys, the next segment is imposters reacting to some shit on the internet, some random shit, which which is kind of funny, so not our own episodes. Okay, so let's go with the first one. Too good. खीर खा के मर जाऊंगा। भाई Arshdeep Singh, hands down, Arshdeep Singh is a very funny guy. I don't know why, but I'm added him on Snapchat और वो stories डालता रहता है, ठीक है? That's the only reason why he has Snapchat, to follow cricketers. भाई because वो क्या and he does some great puns. वो कुछ भी, if he wants to type Sydney, तो वो बस सिड लिखेगा और ऐसा डैश मार के नी का फोटो डाल देगा, एंड मतलब ही विल डू सम रैंडम थिंग्स। उसने कुछ तो एक बार किया था, ये क्या बोलते हैं, फिर किस पे किया था, मेलबोर्न पे किया था, तो उस पे एक आदमी का डाला, फिर कुछ बेल से कुछ डाला, फिर ओन से कुछ डाल दिया, पता नहीं सब रैंडम शिट एंड सुपर फनी। तो लोग बोले थे कि भाई तू लंदन का मत करना, तू लंदन का मत करना, तू लंदन का करेगा, बिकॉज यू तो सेलिब्रिटी हो, क्रिकेटर, तू क्या क्या डाल रहा है, करना पड़ेगा। बट लाइक यू नो, कुडोस टू हिज ऑब्जर्वेशंस कि खीर खा के मर जाना, वो अलग बात है, रोहित शर्मा फिर भी नहीं समझता उसको। द नेक्स्ट वन,
Holy fuck, this shit. Okay, so I'll tell you. So it says, Bollywood has shown us many crazy deals, but nothing compares to Sridevi selling her husband to Urmila for 2 crores. 2 crores. मतलब कि and so like this is an actual plot in a movie called Judai. ठीक है, where Sridevi and Anil Kapoor are married. ठीक है, and apparently Sridevi I don't know if gold digger is the right word, but she thought that like he is like very rich and all those things, but he was like normal middle class and all those things. So she was not happy. And then Anil Kapoor's boss. So Urmila is his daughter. So once like someone was trying to I think rape her or something, and फिर Anil Kapoor comes and just normally saves her, and she falls in love with him. So then Urmila, so Sridevi comes to know of this, and then वो accidentally बोल देती है उसको कि I love your husband etc. So then they make a deal कि तू मेरे को 2 करोड़ रुपया मैं तेरे को देती है, तो मेरे को तेरा हस्बैंड दे दे. And as you can see in this image, and you look at Anil Kapoor's face, you look at his face, वो कैसे क्या हो रहा है भाई, commodity बना दिया है, मतलब by human trafficking, straight up human trafficking. He's like अगर मैं बेच रहा था लड़की को तो कैंसिल हो गया. And ये शादी हो रही है, तू देख ना वो पूरा सा मंगलसूत्र मतलब पूरा ड्रेसअप में, and then later on इसमें क्या होता है कि फिर apparently Urmila then she becomes like a great wife and श्रीदेवी ने उसको अपने एंड से कर दिया डिवोर्स, बट आई थिंक अनिल कपूर डजंट नो, शायद से आई हैव नॉट सीन द मूवी, कि उसको डिवोर्स मिल गया इससे. बट जो भी एज लाइक फॉर हिम ही हैज 2 वाइफ्स, ही इज लिविंग विद उर्मिला, एंड वो अपना सब पैसा वैसा भूल के इसके साथ नॉर्मल ऐसा सब बस में घूम रही है, सब ठीक है, शी इज ओके विद दिस. वो मीन भाई श्रीदेवी ने 2 करोड़ से बंगला खरीद लिया, ये कर लिया वो कर लिया, मजे हो रहे हैं लाइफ में. उसका कोई बच्चा अच्छी उसको भाव नहीं दे रहे. लास्ट में कुछ तो ऐसा एक सीन होता है कि वेयर अनिल कपूर his two kids with श्रीदेवी एंड उर्मिला दे आर गोइंग टू द US. आई मे बी रॉन्ग, मेरे को पता नहीं, बट खाली प्लॉट बता रहा हूँ. ठीक है, वहां पे वो जाती है श्रीदेवी भी टू जस्ट से अ फाइनल बाय और समथिंग. तभी उर्मिला उसको बोलती है मैं अकेले जा रही हूँ, ठीक है, तुम 3 मेरे साथ नहीं आ रहे, मैं अकेले जा रही हूँ, और पर मैं क्या बोलते हैं, पर मैं लाइफ अकेले भी नहीं जा रही कि आई एम प्रेग्नेंट विथ योर चाइल्ड, ठीक है, एंड ऑल दिस थिंग्स. एंड देन उर्मिला बताती है उसको कि ठीक है इसने तुमको मेरे को बेचा, ठीक है, बट द फैक्ट इज कि मैंने इसको स्टार्टिंग में ऑफर किया था, तो आई इनिशिएटेड इट. ठीक है, फिर ऐसा कुछ तो होता है, शी लीव्स फॉर US एंड देन अनिल कपूर फिर गेट्स बैक विद श्रीदेवी एंड दे आर लिविंग अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ एवर सिंस. वाह, बॉलीवुड. What the fuck? मतलब किसी आई डोंट नो कि मैं ये मूवी देख नहीं सकता हूँ, ऑब्वियसली मैंने जो इंटरनेट पे पढ़ा है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, बट शायद से ये मोटा प्लॉट है. आई एम अज्यूमिंग कि आई एम 70% करेक्ट. वाह, तो 2 करोड़ क्या था भाई? 2 करोड़. तो अब पता है लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि मेरे को मिलता तो मैं भी बेच देता किसको, बिकॉज वो दैट टाइम वो पीरियड में 2 करोड़ बाय इन्फ्लेशन एडजस्टेड पीपल आई थिंक 5 करोड़ तो हो गया रहेगा आज तक. भाई इम्पोस्टर्स का स्टूडियो खरीद क्या है भाई, स्टूडियो में बंगला खरीद लेते हैं भाई, तो स्टूडियो बना. नाउ देन नेक्स्ट मेरे में खुला नहीं है, तेरे में खुल गया. ये देखा है मैंने, मेरे को पता नहीं यार क्या है. At this point you burn the whole house down. वो सांप गिर रहे ऊपर से. Oh shit भाई, वो वीडियो insane. Look at the fucking size of the snake. इतना रूम का होगा ये प्रॉपर ये पूरा कवर कर लेगा. और bro it's literally falling down. Imagine अभी वो लटक रहा है, ठीक है, टेरेस से, मतलब जो भी ऊपर से, वो अगर नीचे आ गया रहता, bro you are not opening that door for the rest of your life. Opening your door तो वो छोड़. See, the first time that you ever discovered a snake in your roof, and then you're like यार सांप है ऊपर, and then तुम जाते हो देखते हो तो पहले साइज जो भी हो तो तुम्हारी वहीं पर फट जाएगी, है ना, लाइक यू विल बी लाइक आई एम आउट ऑफ हियर. बट द थिंग इज दैट स्नेक ड्रॉपिंग, एंड जब वो पूरा रूफ फटा एंड जो गिरा इतना बड़ा वो भी 1 नहीं 2 3 दिख रहे हैं, वो 2 दिख रहे हैं, मतलब एंड यू लाइक ये लोग कितने टाइम से रह रहे ऊपर भाई. कभी भी अपने आप भी गिर सकते थे, ये तो उसने टच करके गिरा है. इमेजिन इट जस्ट चिलिंग एंड फकिंग रैंडम fattest snake in the world falls on you, bro. Speed. Next. किस यार नेमार सॉरी
Yeah, they are not stopping. Speed का reaction वैसा, and the thing is his younger brother is enjoying it. I love that. भाई की बड़े भाई की गांड लग रही है भाई, मजा आ रहा है. But I know others. You are watching posters and then reading the comment section. मारो साले की. But the thing is कि स्पीड अंदर ही अंदर खुश हो रहा होगा और रोनाल्डो से चुम्बी मिल गई भाई. Fantasy भाई. But like, have you read this or like known this कि Speed again is just playing a character. He's very different. He's very different. ऐसे मतलब जैसे camera is off, he's like completely normal. He's a genius, bro. Yeah, मतलब and for a 18, 19, he's 19. Yeah, 19. For a 19-year-old to be that unhinged and that mature and knowing the spectrum and like where to draw the line. Yeah. मतलब भाई crazy stuff. Next. Last one on the day. Oh, this is funny, bro. I've seen this one. Oh, मूड देगा भाई. Oh fuck, he's actually peeing. मूड दिया भाई. ओ भाई मूड दिया, अभी लिफ्ट बंद हो जाएगा. फोन उसके पास फोन कैसे है ये उम्र में? आईफोन है क्या वो? Hand shot. Oh, he's stuck. The lift is actually not working. इसकी गांड में देखो उसके कैसे सर पे हाथ रख के रोने लग गया और मुत. No, he's jumping right to make the lift move. But he is still lucky that he has his phone. Yeah, वो उम्र में भाई फोन नहीं. Exactly. But he's calling. But हम इतने भी चूते नहीं ना उस उम्र में. नहीं, बट मेरे जब हम बिल्डिंग में थे, ये एक बंदा था अनुराग करके, he has actually done it. तब पुराने मतलब बिल्डिंग में ऐसे लिफ्ट ऐसे गेट क्लोज करते हैं ना, एक गेट क्लोज और बाहर डोर. तो उसने ऐसे हम लोग कुछ तो खेले थे चोर पुलिस वाले स्टॉप एंड पार्टी, तो ऊपर जा रहा था, ठीक है. तो he really wanted to pee, बट वो नीचे नहीं जा पा रहा था क्योंकि नीचे जो भी वो डाइनर था वो बटन दबा के रखा था. तो हम लोग लिफ्ट में अटके थे, हम नीचे तो नहीं जाएंगे. बोलता है भाई मेरे को तुम्हारे सामने मुद्द दिया. भाई रियली वांट टू बी, आई रियली वांट टू, भाई मेरे को करना है. हमने बोला भाई इधर ही कर, देखो नीचे नहीं जाने वाला है, सब आउट हो जाएंगे. तो बंदे ने पैंट खोला, वो गेट है, गेट खोला सिर्फ, और उधर ही स्टार्टेड नीचे. शिट मैन ब्रो. बच्चों हमारे सामने उसने ऐसे गेट खोला और नीचे ऐसे जा रहा. तुम देख रहे थे क्या होते हुए? हम ऐसे उल्टा घूम के, बट हम ये जल्दी करा, मुझसे धक्का मारा, कुछ ना कुछ कर रहे हैं. बच्चे थे ना, तो दिमाग ही तकता अभी भी. योर चाइल्डहुड इज स्कार्ड. तू घर खेलता था, तेरे सामने लोग बोल रहे हैं. बेस्ट चाइल्डहुड भाई, बेटर देन ऑल दिस फकिंग शिट ब्रो. घर पे बैठ के पीएस खेला, बचपन में भाई. पीएस बचपन में कौन भी खेलता था हमारे. अभी ये जनरेशन में तो भाई बेटर देन दिस फकिंग जनरेशन भाई. अभी वी हैव हैड द बेस्ट चाइल्डहुड. No, I think our parents have had the best childhood. हाँ, that's true, but definitely, yeah, क्योंकि तभी थोड़ा सा डेवलपमेंट भी हो गया था, and at that point मतलब वो थोड़ा जनरेशन आगे बढ़ गया था. Probably their parents weren't as strict with them as their own parents. Correct. है ना, तो मतलब वैसा तो वो भी था, plus no phones, no like all this shit. Just being with your cousins. Like my mom tells me stories of like their friends were their cousins. और क्योंकि सब बड़े बड़े फैमिलीज होते थे, तो दे सो शी वाज लाइक कि वी यूज्ड टू स्टे एट अ कजन्स प्लेस ओनली, लाइक एवरी वीकेंड या कोई भी छुट्टी के दिन, क्योंकि इतने सारे फर्स्ट कजन है मतलब कि कभी इसके घर जाके रह रहे हैं, और क्योंकि पेरेंट्स को भी कुछ परवाह नहीं, क्योंकि दे नो कि लाइक दे आर सेफ. करेक्ट है ना, और ऑलमोस्ट सब लोग लाइक सेम एज के ही है, मतलब लाइक ऐसा. तो एंड वो लाइफ दे आर प्लेइंग स्पोर्ट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, मतलब लाइक नॉट मतलब कि समटाइम्स ऑल्सो लाइक यू नो आई थिंक लाइक cricket and football and all these things, but like all other games क्या डब्बा ऐसा मतलब कि जो भी बोलते थे, मतलब कि मैं तो लाइफ में आई थिंक एक ही बार खेला होगा वो गेम का ज़्यादा. वो टाइम पे तो बहुत गेम्स वो देखा उसका अपना तारक मेहता का एपिसोड. हाँ, वो एक्चुअली बहुत होलसम एपिसोड है. तो हम लोग एक्चुअली वो टाइम पे ऐसे सब गेम्स खेलते थे. हमने एक्चुअली बिल्डिंग में हमारा जो दोस्त थे वो सब खेले थे, डब्बा से उसके बाद खेलना कितना चालू कर दिया था हम लोग ये सब. अच्छा, तो हम लोग बहुत खेला है, डब्बा से भी बहुत खेला. अच्छा, हमारा प्रॉपर बिल्डिंग है कि इतना बड़ा बिल्डिंग था, सब हमारे एज के थे बच्चे, हम लोग लेजिट सब कुछ खेला है हमने. दैट्स व्हाई आई से दैट आवर चाइल्डहुड वाज रियली गुड. लाइक ऑफ कोर्स हमारे पेरेंट्स को तो और भी बेटर रहा होगा, बट इन कंपैरिजन लाइक स्कूल वूल के साथ इतना खेला है. रोज शाम को नीचे आओ, हम लोग क्रिकेट खेलने वीनस है ग्राउंड, कोचिंग भी जाते थे.
हाँ सेम लाइक आई थिंक क्रिकेट और फुटबॉल, ये दो स्पोर्ट्स तो लाइक हम लोग के जनरेशन लाइक व्हेन वी वर यंग तो बहुत ही ज्यादा खेला है। एंड देयर वर सम अदर जो थोड़े सीजनल गेम्स होते थे ना, जब थोड़ी दिवाली आ रही है तो चोर पुलिस लोग खेलते थे एंड ऑल दीज थिंग्स, तो चोर पुलिस हो गया एंड लाइक बहुत ही बचपन में वो चिप्पी वगैरह एंड क्रिकेट का तो हम लोग का रोज 7 तक जो पहले आता हमारे गोल्डन में मिक्स, हम लोग ऐसे वेकेशन होते हैं रोज सुबह 7 बजे 7 बजे कम और इंटरकॉम करता था वो। हाँ वो भाई मेरे को अभी भी याद है ब्रो, मेरी भी ऐसा सब बिल्डिंग में ना लोग इंटरकॉम करते थे, फोन वो नहीं व्हाट्सएप नहीं, तो लोग ऐसा फिर 103 करके अरे तू आ रहे कि नीचे आजा खेलते, सब लोग आ रहे हैं ये वो एटसेट्रा। और उसकी मॉम उठाई तो बोलती है आंटी उसको उठाओ, इसने बोला था 7 बजे कॉल करके उठा दे प्लीज इसको उठाओ, उसकी मॉम बोलती ठीक है उठाती हूं, फिर वो बिना नहाए और वो भी कोई वन ऑफ केस होगा जब जो फिर बंदा नहीं उठाए, वरना खेलने के लिए तो 3 बजे भी सोना, बचपन में तो 6 बजे ऐसे आंख खुली थी भाई खेलेंगे जाके खेलना, और द वर्स्ट फीलिंग एवर कि ऐसे नहीं उठे। हां और एकदम क्रेजी मैचेस हुए हैं 9 बजे, हां 9-10 बजे उठ रहे हो जब सब जा रहे हैं, तुम नीचे भी नहीं जा सकते, घर पे बस मम्मी पे चिल्ला लो क्यों नहीं उठा, वो नीचे मम्मी बोले थक गया था इसलिए नहीं उठा, वर्स्ट फीलिंग है बीन देयर बट एंड वो यार उसके बाद फिर घर पे आके नाश्ता करना, क्योंकि तुम 3-4 घंटा खेल के आए हो, फुल भूखे हो, या तो अगर कोई अच्छा दिन है और लाइक तुम्हारे पास पैसे तो फिर तुमने कुछ खा लिया नीचे से जाके नॉर्मल वड़ा पाव या ऐसा कोई ऐसा, तो जो तभी जो ऐसा जो बोलते ना तृप्ति जो मिलती थी खाने की, मेरे को तो बहुत मजा आता था। 4 घंटा लाइन से चल के खाओगे। हाँ एंड उसके बाद क्योंकि थे बच्चे घर आके कुछ खाएंगे, टीवी देखा, दोपहर में खा के सो गए। गोल्डन एज। आज संडे है, सुबह 6:30-7 बजे से उठ के शूट करने बैठे। आज क्या टाइम हो गया? 11:30 बजने को आ रहे हैं क्योंकि सम टेक्निकल इश्यूज। 3 घंटे से बैठ के शूट खत्म हो रहा है। ग्रॉस वीडियो आएगा 30 मिनट का, 35 मिनट का और बैठे 3.5 घंटा। Good days. On that note, thank you guys for watching. We have tried a couple of new things. मेरा बैटरी खत्म हो गया तो मैं We'll see you guys on the next episode. Please subscribe to our channel. We want to hit the mark very soon. Thank you for watching. See you next Sunday. Thank you.